पहुंच पाते हैं। पूरे देश के लिए, जन जन के लिए ये बड़ा ही प्रेरणादायी अवसर है और आज का दिन है अत्यंत विशेष। Namaskar and greetings from Rashtrapati Bhavan, New Delhi, the official residence of the President of India. And as we beam these majestic images to you through our live presentation, today is a special occasion, a celebratory day indeed, as after a wonderful and sagacious 5-year tenure, the President of India, Shri Ram Nath Kovind, will hand over charge to India's newly elected 15th President, Srimati Droupadi Murmu, India's first tribal woman president. The transitions of a country's president are ceremonial occasions. A certain amount of pomp and protocol are mandatory. And why not? These traditions add to the process of smooth transitions, of continuity being celebrated and honor being bestowed to the high office. विशाल राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, जहां राष्ट्रपति अंगरक्षक मुस्तैद अब से कुछ ही देर में यहां राष्ट्रपति भवन से नव निर्वाचित राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के लिए प्रस्थान करेंगे। शानदार दृश्य, और आज के मौसम में जहां कभी सूरज बादलों से निकलता हुआ और कभी बादल सूरज की रोशनी को ढकते हुए, पूरा माहौल आज के इस शानदार समारोह के लिए उपयुक्त, ऐतिहासिक अवसर और ये शानदार दृश्य राष्ट्रपति भवन से। The President's bodyguard in their summer ceremonials. During the Republic Day parade, we see them in scarlet and gold, which are their winter ceremonials. But today, they are in their summer ceremonials. Their red and white pennants catching the light breeze and, of course, the tinkling of the fountains. A fairly warm and humid day in the capital, the rain and sun playing hide and seek, a mild breeze playing along. Srimati Droupadi Murmu, a lady whose personal life story from her humble beginnings to becoming the first citizen of this nation is a testimony to a vibrant, alive and functioning democracy, where sheer hard work, dedication, courage and of course perseverance gave her the path to chase her individual dream to bring about collective well-being through sweat, toil and belief in herself. And as she will come in as India's first citizen, as the President of India, she will keep people at the foreground. राष्ट्रपति भवन से ये दृश्य, सामने राजपथ, विजय चौक, उसके बाद राष्ट्रपति भवन का मुख्य द्वार और ये जयपुर स्तंभ, जिसके ऊपर कमल और सितारा, राष्ट्रपति भवन का शानदार गुंबद जो दूर से ही दिखता है, तांबे का बना हुआ, बहुत ही भव्य और विशाल ये राष्ट्रपति भवन और इसका ये मुख्य द्वार, लोहे का विशाल फाटक। The majestic gate of Rashtrapati Bhavan, a work of art in themselves, going up to 6 meters in width. And of course, as we all will be witness to a beautiful ceremony here, this is the path leading out from the forecourt, and in the center is the 44-meter tall Jaipur column topped by the Star of India, and this huge panoramic vista you can see right up the gently sloping Raisina hill going through Rajpath towards India Gate. And just right at the center of attention is the central dome of Rashtrapati Bhavan. This is one of the most distinctive features of the building,
55 meters above the level of the forecourt. It has the national flag hoisted from its peak, and the central dome is twice the height of the building. राष्ट्रपति भवन का ये प्रांगण और सामने इसमें ये खंबे, 12 खंबे सामने और 8 पीछे, यानी कुल 20 खंबे, और सामने उसके हैं 31 सीढ़ियां। राष्ट्रपति अंगरक्षक रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन के सामने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, जहां भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय यहीं मौजूद है। राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने प्रांगण में जयपुर कॉलम 145 फीट ऊंचा है। We are awaiting the arrival of the President-elect, Srimati Murmu. And there she is, entering Rashtrapati Bhavan, her home and office for the next 5 years. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वागत अभिवादन कर रहे हैं निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी श्रीमती सविता कोविंद। Warm smiles, warm greetings. And as the hosts lead the President-elect towards the President's study, joy writ large on every face. A special moment for everyone here. 5 वर्षों तक निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आधिकारिक निवास रहा राष्ट्रपति भवन, और आज से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आधिकारिक निवास होगा ये राष्ट्रपति भवन। संसद भवन जाने से पहले उनका औपचारिक स्वागत, राष्ट्रपति भवन में उनका आगमन हुआ है। And as President Kovind will bid adieu to his office and makes way for Srimati Murmu, we witness another core component of democracy, that change is the only constant, and graceful transitions ensure seamless continuity. The office of the President of India has a dignity, decorum and gravitas that President Ramnath Kovind has brought in. In addition to upholding these, his earthy wisdom has added a lot. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम नागरिक के तौर पर पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बैठने जा रही है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार ओडिशा के मयूरभंज के छोटे से कस्बे रायरंगपुर से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू का रायसीना हिल तक का सफर ये बताने के लिए काफी है कि कैसे उनके संघर्ष ने उन्हें ये मुकाम हासिल करने में मदद की। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है वो व्यक्तित्व जो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत की आजादी के करीब 11 साल बाद 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बैदापूसी गांव में हुआ। उनका परिवार संथाल आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता है और उनके पिता अपनी पंचायत के मुखिया थे। द्रौपदी मुर्मू जब कार्यभार संभालेंगी तो वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली ऐसी पहली राष्ट्रपति होंगी जो आजादी के बाद पैदा हुई है।
जब द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय लोकतंत्र के पहले नागरिक का चुनाव जीता तो देश भर में खुशी का माहौल देखने लायक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी जीत को गरीबों, पिछड़ों और हाशिए के लोगों की जीत करार दिया तो उनके प्रशासनिक अनुभव से देश को लाभ मिलने का भरोसा भी जताया। रायसीना हिल तक पहुंचने से पहले द्रौपदी मुर्मू का एक लंबा संघर्ष रहा है और उन्होंने लोगों और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की। तब वह सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक के पद पर थी। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने घर रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर में श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में शिक्षक के तौर पर करीब 3 साल तक पढ़ाया। एक शिक्षक के तौर पर उनकी मेहनत ने उन्हें इलाके में एक नई पहचान दिलाई। शिक्षक की जिम्मेदारी के बाद द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक सफर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में शुरू हुई। वो रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। उसके बाद वे राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गईं और रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर 2 बार साल 2000 और साल 2004 में विधायक बनी। पहली बार विधायक बनने के बाद वो साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने बतौर मंत्री के तौर पर 2-2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग और मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग संभाला। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। एक विधायक के तौर पर उनका आचरण और गंभीरता ने सभी को प्रभावित किया। जब द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर आगे बढ़ने लगा तो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में बड़ा तूफान आया। एक एक कर अपने उन्होंने 2 बेटे खो दिए और उसके बाद अपने पति को भी खो दिया। अपने बेटे और पति के खो देने से वो एक तरीके से टूट गई और आध्यात्म की शरण में चली गई। खुद को बिखरने से रोकने के लिए उन्होंने योग और ध्यान का सहारा लिया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। मई 2015 में झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के तौर पर उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाली। संवैधानिक पद से लेकर सार्वजनिक जीवन में रहते हुए दशकों के सफर में द्रौपदी मुर्मू का जीवन बेदाग रहा है। एक शिक्षिका के रूप में काम करने और सार्वजनिक जीवन में रहकर शिक्षा के महत्व को करीब से समझने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा की अलग जगाने का बीड़ा उठाया और एक ट्रस्ट बनाकर शिक्षा के प्रसार पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने SLS ट्रस्ट के नाम से न सिर्फ स्कूल खोला बल्कि बच्चियों के लिए एक हॉस्टल भी बनाया जिसमें करीब 70 से ज्यादा लड़कियां रहकर पढ़ाई कर रही हैं। आदिवासी इलाके में शिक्षा की अहमियत को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा शुरू किए गए इस प्रयास का पूरे इलाके में अच्छा असर पड़ा और लड़कियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती दिखाई पड़ रही है। जब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और द्रौपदी मुर्मू अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में लगी हुई थी तो ओडिशा से लेकर झारखंड तक के आदिवासी बहुल्य इलाकों में उनकी जीत के लिए आदिवासी समाज के हजारों लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें भी देश के कोने कोने से सामने आई। देश के राष्ट्रपति के चुनाव का जब मौका आया तो देश भर के कई सांसदों और विधायकों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भी उनका सरल और शालीन व्यक्तित्व माना जा रहा है। तो एक आदिवासी महिला के रूप में मंत्री से लेकर राज्यपाल तक के उनके अनुभव को भी देश के कोने कोने से स्वीकारता मिलती दिखी। बेदाग छवि और सख्त प्रशासक के तौर पर भी द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक विरोधियों के बीच भी जगह बनाई और अपेक्षित वोटों से ज्यादा वोट हासिल करके ऐतिहासिक जीत हासिल की। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा तो विकास की धारा में दशकों तक पीछे रह गए आदिवासी समाज के लिए भी आत्मसम्मान का एक नया संबल बनेगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये ना तो साधारण व्यक्ति हैं और ना ही इनके संघर्ष की गाथा साधारण है। मुश्किल से जूझने
अपना रास्ता बनाने, जन कल्याण के नित नए अवसर तलाशने और हार न मानने का जज्बा जब होता है तब व्यक्ति असाधारण बन जाता है। आज कुछ देर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति यहां राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान करेंगे और उसके बाद संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और फिर नए राष्ट्रपति का संसद के केंद्रीय कक्ष में संबोधन होगा। ये प्रांगण भव्य शानदार प्रांगण, जिसकी 31 सीढ़ियां और उसके बाद ये यहां पर सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रपति अंगरक्षक जिनका नेतृत्व संभाला है कर्नल अनूप तिवारी ने। The President's bodyguard, ready, awaiting the arrival at this majestic forecourt of Rashtrapati Bhavan of the President and the President-elect. Srimati Droupadi Murmu's coming into Rashtrapati Bhavan as India's 15th President will strengthen the grassroots connect of the country's highest office with those who give democracy its strength, India's people, in not only big towns and cities, but in villages and far-flung areas that are seldom heard of, seen or even thought of, but hold us together as a nation, silently, strictly, and with muted expectations. There are countless stories there of humble beginnings and humble ends, but all teaching us that value of endurance, tolerance, toil, and pragmatism. And one such story today, one with humble beginnings as a village headman's daughter and granddaughter, moving on to head the largest democracy in the world as its constitutional head. Her story, of course, is inspiring, but the Santhal tribe she hails from has a long history of fighting the British, fighting injustice and fighting with honor. Patriotism runs in their blood and they epitomize the line, if you believe in something, then fight for it. Simple things make strong statements. संथाल आदिवासी, संथाल जिन्हें कहा जाता है शांत व्यक्ति, ऐसे हैं ये संथाल आदिवासी और उसी समुदाय से हैं हमारे देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन, उसके सामने रायसीना पहाड़ी से नीचे की ओर विजय चौक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वास्तुकला का एक शानदार नमूना। विजय चौक से भव्य राष्ट्रपति भवन, जिसके एक ओर नॉर्थ ब्लॉक और दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक। और ये दृश्य खास मौकों पर हम सब देखते हैं। आज ऐसा ही विशेष अवसर है और यहाँ निवर्तमान राष्ट्रपति के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अब कुछ ही समय में यहाँ से राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर अग्रसर हैं। वहां से वो प्रस्थान करेंगी माननीय राष्ट्रपति जी की साथ संसद के केंद्रीय कक्ष की ओर। Specially placed cameras giving you an inside view of the galleries of Rashtrapati Bhavan. Interesting to know that there are 2.5 kilometers of corridors in Rashtrapati Bhavan. In architecture, material influences the expression royal, regal, splendid without being overbearing or overwhelming. The sandstone pink and cream combination used gives a feeling of space and dimension, new meaning, beautifully synced together, keeping Delhi's climate in mind.
We are very blessed to have a lovely light breeze blowing here in the national capital. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा जनरल सल्यूट अध्यापक प्रांगण में समारोहिक और औपचारिक गतिविधियां जारी हैं। राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, राष्ट्रपति भवन में कुल 227 खंबे हैं और उसका प्रांगण अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार का है। मुख्य द्वार से भीतर तक दोनों ओर हरियाली और नहर है, फव्वारे हैं और यहां प्रांगण की लाल बजरी कालीन की तरह चमकती हुई लगती है। राष्ट्रपति अंगरक्षक बाजू पल्लव बैठ विश्राम। प्रांगण के ठीक सामने जो गुंबद है वही दरबार हॉल का गुंबद, जो दूर से ही राष्ट्रपति भवन की पहचान। बलुआ पत्थर के बने खंभों के ऊपर चारों कोनों पर घंटियों को उकेरा गया है और भव्य और शानदार इमारत राष्ट्रपति भवन, देश के प्रथम नागरिक का आधिकारिक निवास। The work of democracy is hard, the progress of democracy is uneven, and the only path of democracy is through inclusion. Today we walk the talk of inclusion, diversity and possibilities. As Srimati Droupadi Murmu will take oath as India's 15th President. As the first tribal woman president of India, Srimati Murmu has not only made her family, her tribe or her well-wishers proud, she's ensured that every Indian's heart, irrespective of origin or background, beats to the tune of the uplifting rhythm of pride, applause and joy. We belong to a country that breaks stereotypes, that raises eyebrows in surprise, and that believes in raising the bar for innovating, adapting and coping. बहुत सी बातें जो लोगों को आश्चर्य में डाल सकती हैं, लोगों को अविश्वसनीय लगे, भारतीय लोकतंत्र ऐसा करता रहता है और जिसमें ताजा उदाहरण हमारे देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का है। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली और उसके बाद देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचकर उन्होंने करोड़ों करोड़ों मन को प्रेरित किया है और भविष्य में यह संदेश भी दिया है उन्होंने कि संघर्षों से जूझना है, लड़ना है और आगे बढ़ना है। The President's bodyguard here, their commandant, Colonel Anup Tiwari, the second in command, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav. राष्ट्रपति अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है और इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। सबसे पहले इसे द गार्ड ऑफ मुगल्स कहा गया था, लेकिन बाद में इसे अनेक नाम दिए गए। इस रेजिमेंट का गठन एक विशिष्ट घुड़सवार यूनिट के रूप में हुआ। स्वतंत्रता के बाद कई बार राष्ट्रपति अंगरक्षक ने अनेक युद्ध में अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। राष्ट्रपति अंगरक्षक के सैनिक समारोहिक औपचारिकताओं में दक्ष हैं, वे प्रशिक्षित घुड़सवार और कुशल टैंक चालक भी हैं। The President's bodyguard on magnificent dark bay and bay colored mounts
And in fact, the guards are riding steeds that are the tallest held by any mounted unit in the country, at a minimum of 15.5 hands. And these magnificent horses are very well looked after by the 44 Military Veterinary Hospital. A unique, distinct regiment. The personnel are handpicked, all of them at least 6 feet tall. And of course, besides performing ceremonial duties for the president, the officers and men of the bodyguards are trained horsemen, paratroopers and tanksmen. Chushul in 1962, in the Western Theatre in 1965, and in Operation Pavan in Sri Lanka in 1988. They've all seen action there. The flag fluttering high, indicating that the president is in Rashtrapati Bhavan, in residence. Equality, freedom, justice, pluralism, tolerance, respect, participation. The list of values that a democracy stands for include that which has been stated by earlier generations and also those which evolve as time goes by. To keep up with the times, to yet bring in tradition so that the past and the future are connected by the present. That is a legacy we leave behind. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का जीवन महिलाओं और बालिकाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। ज्यादातर समाजों में हमने देखा है कि लिंग भेद होता है, बेटा बेटी में भेद किया जाता है, और ऐसे में बालिकाओं के सामने, महिलाओं के सामने संघर्ष और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने बालिका विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें बेटियों को बचाने के लिए बेटियों को बचाओ और इसी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीबीएसई की उड़ान योजना, लड़कियों के लिए मुफ्त या राज सहायता प्राप्त शिक्षा, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रेरित करने की राष्ट्रीय योजना। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है वो ये कि जितने भी अवसर हैं उसमें कहीं कोई भेदभाव ना हो, समानता हो, लड़कों के बराबर उन्हें भी आगे बढ़ने के वो सभी अवसर प्राप्त हों और ये सुनिश्चित हो घर से। वो समाज जब भेद नहीं करता, जब बेटा और बेटी समान हैं, तब वो समाज पूरी तरह से विकसित होता है, विकास करता है। ये ऐसी कहानियां हैं जो प्रेरणादायी हैं और जिनकी मिसालें आने वाली पीढ़ियां भी देंगी। In a short while from now, we shall see the arrival here at the forecourt of the President, Shri Ramnath Kovind, and the President-elect, Srimati Droupadi Murmu. As the constitutional head of the country, the President is de facto also the first citizen of India, playing a significant role of the head of state of India. The President is also the supreme commander of the 3 Indian armed forces. It is laid down in our constitution that the President has the responsibility and the authority
to accord with, to defend and protect the Constitution and its rule of law. The Constitution, which is the basis of our democracy. The Constitution, which shows us the way whenever we tend to get lost. The Constitution, which ensures the values of dignity for all, equality, equity, brotherhood, fraternity, and justice. राष्ट्रपति अंगरक्षक मुस्तैद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दरबार हॉल के सामने, ये प्रांगण की मुख्य सीढ़ियां, और अब से कुछ देर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति दोनों यहां पधारेंगे। उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा और फिर वो प्रस्थान करेंगे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की ओर। ये दृश्य राष्ट्रपति भवन की ओर से, और यहां दरबार हॉल में निवर्तमान राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति Information and informal procession. The President of India, Shri Ramnath Kovind, and the President-elect of India, Srimati Droupadi Murmu, going past and through the Darbal Hall. Under the shadow of Lord Buddha, 5th century BC Gupta period.